Good morning students and welcome to our e-learning session for class 10th initiated by Shri Gyan Manjari Vidyapit, and today we are on lecture number 5 for chapter number 2. As I said before also, this is one of the interesting, one of the informative, and if we talk about the exam purpose, then it is one of the important chapter that has to be learned. Your conceptual understanding should be clear. So number of point already we have discussed. So before we talk a new topic about the folk dances of Gujarat and many other point, let's take quick revision what we have discussed. So as we know, India is the land of diversity. In India, we are having a rich heritage, rich culture. Number of heritage, different art and culture, that what we have discussed. The point what you have to learn and what you have to remember for the previous lecture was about the genetic inheritance and the physical inheritance. Okay, so genetic inheritance means the characteristics, the physical and the mental characteristics what you get from your ancestors. Okay, so genetic inheritance means what? The physical and the mental characteristics from the parents by birth what we get, it is known as the genetic, whereas the houses, land, estates, like the properties obtained from the ancestors, that what we say is the material heritage. Now as we know, India is the land of the culture, land of the diversity. The culture, the tradition, the art, the knowledge what we were having, like no other country can compete us. Number of art, very briefly we have discussed, that what we say is very proudly we can say that is from our country. So first of all we discuss about the art of clay, as clay from cradle to grave, you know, it's a part of our life. If we talk about the Indus Valley civilization, or if we talk about the early man who was the hunter gatherer who lived the nomadic life, from there we use the clay in the different way as utensils or the toys and so on. So early human also used, and we were very expert in the clay art. Then we talk about the art of weaving. So weaving means what? It's the art of making a long threads using the small pieces of cotton from the cotton balls and joining them together is called the spinning. And Gandhiji also during the freedom movement, he emphasized on this cottage industries. Then we talk about the different types of hand weaving. In that we talk about the Patana Patola, the special note I gave you to learn, to remember in your homework. Then we talk about the embroidery, the art which is created and the clothes, that what we talk. Then leather, musak, and the different point about the leather industries, even since ancient time we are using the leather. Then diamond beads work and animal work. Diamond, like we know, India was the only producer of gold and diamond 100 years back. So the diamond industries, the work on the diamond and the gold and the animal work is also very popular in our country. Metal work, as after Stone Age we were having the Metal Age, so the use of copper and bronze, since early time we are using this two metal. Then the wooden art, excellent wooden art we are having, and we can see this wooden art in our temples and in the palaces and at the different places. Then inlay work, jhadtar ka work. I show you the images of the inlay work, very popular from the Bikaner side, from the Jaipur side. Then akik work, a precious colorful stone which we get from the river bank. In Gujarat we found in a number of proportion. Beautiful art by which we can express our thoughts, our imagination, our feeling. That is the art of the painting. कला के द्वारा, चित्रकला के द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, अपना मूड प्रस्तुत कर सकता है, and that is the beauty of the painting. And if we know about the Ajanta Ellora cave, we know about the Bhimbetka. मतलब, since early human was also expressing his thought, his view by the painting.
एंड इफ वी कंसिडर, अगर इंडिया की बात करें, सो वी आर हैविंग एक्सीलेंट पेंटर, पेंटिंग आर्ट, what we are having, and different, like we talk about the things. Then another very important art, जिस कला की हमने बात की थी, that was the music. That was the art of fine art. In that we talk very briefly about the music. Like राग के द्वारा, rhythm के द्वारा, we can express the different emotions. Yes, so Indian music is a unique from the point of view of tune, rhythm and harmony. Even we talk Bhagwan Shiv, जिसको आदि गुरु कहा जाता है, who consider as the original founder of the music, art and all culture and all art. ओके, भगवान शिव के पंचमुख से 5 राग जिसको आपको याद रखना है, दैट इज अ श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ एंड भैरवी. Different music, the books on the music, like the Sangeet Markanda, Sangeet Ratnakar and Sangeet Parijat we talk. Very important point I told you to, you have to mark it, you have to remember it. Then we talk about the art of dance, like a painting, how we can express our feeling, emotion, mood with colors and with the pictorial representation. Same we can present our mood, all type of ras with the dance. And we talk about the classical dance. So in that we talk about the Bharatanatyam, originate in the Tamil Nadu. Then we talk about the Kuchipudi, that is, we can say the art form of the Andhra. Then we talk about the Kathakali. Then Kathak originated or the dance form of Uttar Bharat. Then we talk about the Manipur. This all point we discuss. Even in fourth lecture we talk about the dramatic art. Dramatic art मतलब नाटकों के द्वारा अपने विचारों की प्रस्तुति करना. So presenting sanskar with the entertainment is the unique feature of Indian dramatic art. Our sanskar, we know in Indian mythology, in Indian religion, in the Hindu religion, we are having षोडश संस्कार. 16 प्रकार के अलग अलग संस्कारों को स्थान दिया गया है. और ये 16 के 16 संस्कार, जैसे शादी है एक संस्कार है, गर्भाधान संस्कार, अग्नि संस्कार, तो 16 प्रकार के कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवीत एक संस्कार है. तो 16 प्रकारों के संस्कार को by drama with the entertainment we can express. Okay, then we talk about the Gujarati natak and Gujarati art form. In that we talk about the name of the Jai Shankar Sundari is foremost in the dramatic art of Gujarat, beside Amrutlal Nayak, Bapulal Nayak, Dina Pathak, Jashwant Thakur, Upendra Trivedi, Praveen Joshi, Deepak Ghiwala are the remarkable or renowned personality in the dramatic art. गुजरात के जाने माने एक्टर्स है. जैसे आप लोगों ने रामायण देखी है जिसमें लंकेश का पात्र अरविंद त्रिवेदी ने प्रस्तुत किया था, जो कहता है ना अहम ब्रह्मस्मि एको न द्वितीयति न भूतो न भविष्यति. सो रामायण के अंदर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जो कैरेक्टर्स थे दे बिलोंग्स टू गुजरात. जैसे सीता माँ का जिसने रोल किया था दीपिका चिखलिया, शी वॉज ऑल्सो गुजराती. एंड सबसे बेहतरीन जिसके लिए पहचाना जाता है रावण का पात्र, दैट वॉज परफॉर्म बाय द अरविंद त्रिवेदी. सो एंड लास्ट पॉइंट व्हाट वी हैव डिस्कस वाज द भवाई. आई टोल्ड यू रंगलो रंगली स्ट्रीट डांस, स्ट्रीट नाटक होते हैं जिसके द्वारा सोशल संदेश, सोशल लाइक यू नो एजुकेशन दिया जाता है, सिविक्स एजुकेशन जिसको दिया जाता है. एंड आई टोल्ड यू लाइक रंगलो रंगली आर द 2 कैरेक्टर. एंड लाइक यू नो ड्रामेटिक वे से फनी भी होता है, ता थैया थैया थई थई एंड ट्रम्पेट रणशिंगू जैसा आता है, ऐसा वो स्टार्ट होके बजा के वो लोग एंट्री करते हैं. सो स्क्रिप्ट वेयर विद सेज द भवाई इज इमोशनल ओरिएंटेड ड्रामा एंड असिताई ठाकर हु स्टार्ट दिस फॉर्म ऑफ भवाई इज नोन एज असिताई ठाकर थे. जो असिताई ठाकर को आपको याद रखना पड़ेगा. So 700 years back by the Asitai Thakur,
and the art which has been providing public education, and by bhavai we can teach the public, and the public awareness, public education we can provide. Up to this all point what we have discussed. So today we will going to discuss about the folk dances of Gujarat. Especially there are, as you know, in all part of India we are having different culture, heritage and different system, way of the tradition. So here we will going to talk about the folk dances. Folk dances मतलब लोक नृत्य, जो क्लासिकल डांस नहीं है. वी नो अबाउट द 8 form of classical dance, so which are not the classical, that we consider in the folk dance. In the classical dance there is some certain expertise is required, there will be certain rules regulation to be followed. folk dance जिसको हम कहेंगे लोक नृत्य, आज हम उसके लिए बात करने वाले हैं. So there are varied dance form belonging to different communities of Gujarat. गुजरात के ऑल 33 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपना खुद का एक लोक नृत्य प्रकार भी है. So this dance form are according to the tradition and custom. जो राज्य के अंदर, जो प्रदेश के अंदर जहां जिसका कल्चर, जैसा जिसका ट्रेडिशन, according to the tradition, according to the culture, they will have this type of folk dances. Among them are the tribal and folk dances, garba and many more are the folk dances like garba, ras, रास है, गरबा है, लाइक यू नो हर एक जगह पे अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया जाता है. सो अमंग देम आर द ट्राइबल एंड द फोक डांसर्स. सो ट्राइबल मतलब आदिवासी एरिया के अंदर, सो द ट्राइबल एंड फोक डांसर्स. सी, सो अमंग देम आर द ट्राइबल एंड द फोक डांसेस, गरबा, रास एंड मेनी मोर आर द टाइप ऑफ फोक डांसर्स. सो सच अ आर्ट ऑफ डांस कैन सीन इन द टाइम ऑफ द फेस्टिवल्स, मैरिज एंड फेयर्स. मेलों के समय में, त्योहारों के समय में, या तो मैरिज फंक्शंस के अंदर यू कैन सी दिस टाइप ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ फोक डांसेस. सो देयर आर वेरी डांस फॉर्म belonging of different communities of Gujarat. This dances forms are according to the traditional and customs. Among them are the tribal and folk dances, garba and the ras. Many more folk dances such as art and dances can be seen at the time of festival, marriage and fairs. Now tribal dances of Gujarat. आदिवासियों का नृत्य, ट्राइबल डांसेस ऑफ गुजरात. लेट्स टॉक ऑन दैट. सो ट्राइबल डांसेस ऑफ गुजरात इज सीन इन द टाइम ऑफ फेस्टिवल, मैरिज, फेयर्स एंड टू प्लीज द गॉड गॉडेस. भगवान को ऐसे ट्राइबल लोग बहुत सारे अंधविश्वास में, अंधश्रद्धाओं में भी मानते हैं. सो ट्राइबल डांसेस ऑफ गुजरात इज सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स, मैरिज एंड टू प्लीज द गॉड गॉडेस. कोई धार्मिक त्योहार के ऊपर, सो टू प्लीज, भगवान देवी देवताओं को खुश करने के लिए भी ट्राइबल लोग नृत्य की प्रस्तुति करते हैं. मोस्ट ऑफ डांसेस आर परफॉर्म बाय फॉर्मिंग अ सर्कल. मोस्ट ऑफ द डांस कैसे परफॉर्म करेंगे? फॉर्मिंग अ सर्कल एंड along with the various traditional musical instrument, with the music, with the rhythm, they will perform the dance. So most of the dances are performed by the forming a circle along with the various traditional music instrument like the drum, traditional manjira and dolak, and with the song in the regional languages. So in the dance form known as the chado, it's a chado actually. इमिट करना, किसी की कॉपी करना, गुजराती में આપણે કહીએ ને ચાળો પાડે છે. So it's a one type of folk dance. So it's a चाड़ो, characteristic imit. किसकी imit, किसकी कॉपी करेंगे? Different birds, creature like the peacock, squirrel and sparrow. So one of the famous dance form is a चाड़ो. ठीक है? And it is the characteristic imit. किसको imit करेंगे? वहां पे जो play करेगा, sorry, it will imitate the different bird creatures like the peacock, squirrel and sparrow. So that is the beautiful dance form of the chalo. Dance like the Malino chalo. This is the form, Malino chalo. Then Thakariyo chalo are seen in Dang. अब ये आपको याद रखना पड़ेगा. See, this is important. In a one word, in a MCQ,
or in the filling the blanks, it's like, can ask. So you have to remember that dance like the Malino Chalo and Thakariyo Chalo. This is a two different form of Chalo dance, folk dance, that is seen in the Dang. Dang district के अंदर ठाकरियो चाड़ो, माड़ीनो चाड़ो, this type of folk dance can be seen. टिप्पणी डांस. Now might be the girls knowing this. टिप्पणी लकड़ी से लेके डांस किया जाता है, उसको नीचे उसको टैप करके एक डांस फॉर्म होता है जिसको कहा जाता है टिप्पणी डांस ऑफ लेबरर, दैट इज अ शर्मारी. सी टिप्पणी डांस ऑफ लेबरर, दैट इज अ शर्मारी परफॉर्म बाय द भील एंड कोली कम्युनिटी. अब टिप्पणी डांस कौन करता है? भील एंड कोली कम्युनिटी. टिप्पणी डांस कहा कौन परफॉर्म करेगा? फ्रॉम द भील एंड कोली कम्युनिटी. दिस यू हैव टू रिमेंबर. So Tippani dance of laborers, that is a Sharmari performed by the Bhil and Koli communities. Dancer perform dance in a group on the set of thick stick, lakdi. આપણે મોટી લાકડી હોય, ડાંગ જેને કહેવાય, મોટી લાકડી. So dancer perform dance in a group on the set of thick stick which are joined with the small stick stuck to the ground. और जमीन पे मार मार के वो लोग डांस करते हैं. So this is the one form Tippani dance which is very popular. See here in this image, see this is the Tippani ras. If you can see, they use the stick. ये लाकड़ी है, लकड़ियों का यूज करते हैं with the dance. And see here, वो उसको बैंग करके डांस करते हैं. See both the images of Tippani dance. इसको Tippani dance कहा जाता है. Here you can see गर्ल्स जो है, फीमेल्स जो परफॉर्म कर रही है, दे आर हैविंग द लॉन्ग स्टिक, ब्यूटीफुल स्टिक, एंड दे टैप्ड एंड देन दे डांस. सो दिस इज द टिप्पणी डांस. सी दिस इज द चाड़ो. ये चाड़ो डांस, इट्स अ ट्राइबल डांस. इस तरह से वो एक सर्कल में घूम के, सर्कल में रह के वो लोग डांस परफॉर्म करते हैं. सो दिस इज द चाड़ो. ये चाड़ो डांस का एक एग्जाम्पल है और इमेज है. नाउ लेट्स सी अबाउट द गरबा. सो गरबा मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गुजराती डांस, वर्ल्ड रिनोड, वर्ल्ड फेमस. पूरी दुनिया में शायद ही कोई देश होगा जिसको गरबा नवरात्रि के बारे में ना पता हो. सो लेट्स टॉक अबाउट द गरबा. So the word Garba is derived from the word Garbhadeep. Garbhadeep. It's a symbolic. नवरात्रि के अंदर हम गरबा, माँ का घट स्थापित करते हैं, जो होल वाला होता है उसके अंदर हम दीप रखते हैं. So it is symbolic that माँ जगदम्बा, माँ भगवती ने पूरे ब्रह्मांड, जो दीपक की रोशनी आती है, that all are the universe and the solar system, स्टार्स, प्लैनेट्स है, जो अपने सर पे लगते हैं. माँ इज मदर, इट्स लाइक शी इज अ क्रिएचर, शी इज अ लाइक दुनिया बनाने वाली है. सो शी इज हैविंग, ये एक सिंबॉलिटिकल है कि माँ पूरे घट को, पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को अपने सर पे, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके वो चलाती है. शी इज द जनरेटर, शी इज द ऑपरेटर, मदर इज कंसिडर. So the word Garba is derived from the word Garbhadeep. Garbhadeep से ये derived हुआ है. Earthen lamp is placed in the hold earthen pot. मिट्टी के earthen pot के अंदर, जिसको हम गुजराती में कहते हैं, अपने नवरात्रि में गरबो लीधो, मिट्टी का एक earthen pot होता है और उसके अंदर हम क्या रखते हैं? दिया, मिट्टी का दिया रखते हैं, कोड़ियों. So earthen lamp is placed in the hold in the earthen pot. Dancers keep on their head and move around in the circle. और गरबा, एक्चुअली गरबा पहले कैसे होता था? गरबो जो होता है, earthen pot होता है, उसको सर पे लिख के डांस करते हैं. जैसे हम आज दौड़ियो ना छटियो और सब स्टेप करते, वो न्यू फॉर्म ऑफ गरबा है. बट ट्रेडिशनली गरबा सर पे, गरबो मतलब earthen pot को लिख के मांडवी के आजू बाजू माता जी की जहां पे मूर्ति है वहां पे औरतें नाचती है. That is the original form of Garba. So Garba is performed during the Navratri festival in Hindu month as Sud Ekam to the Aso Sud Navami. वैसे 4 नवरात्रि होती है.
So Garba are performed during the Navratri festival in Hindu month Aso Sud Ekam to Aso Sud Naumi. आसो महीने की नवरात्रि एंड आसो सुद एकम टू आसो सुद नवमी और समवेयर अप टू द दशम और शारदा पूनम शारदीय नवरात्रि जिसको कहा जाएगा इन ऑल पार्ट ऑफ गुजरात। गुजरात में नवरात्रि 9 दिन का सेलिब्रेशन आसो महीने में आसो सुद, जैसे हिंदू कैलेंडर के जो ये 12 महीने हैं कार्तक माक्षर पोष महा फागण चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ श्रावण भादरवो ने आसो। सो आसो मास की नवरात्रि एकम फर्स्ट डे से लेके 9 दिन तक ये सेलिब्रेशन चलेंगे। सो गुजराती पीपल परफॉर्म एंड सिंग गरबा टू द वर्शिप एंड प्रे आद्य शक्ति। आद्य शक्ति मीन्स गॉडेस दुर्गा, हर एक फॉर्म की माँ, महासरस्वती, महालक्ष्मी एंड महागौरी। ओके, सो विच इज द सुप्रीम पावर, माँ से बड़ा कोई तत्व नहीं हो सकता। So Gujarati people perform and sing Garba to worship and pray आद्य शक्ति। जय आद्या शक्ति हम कहते हैं ना, कवि आरती गाते हैं। So pray the आद्य शक्ति, that is the goddess of power, मदर जगदम्बा। माँ जगदम्बा की आराधना की जाती है नवरात्रि के 9 दिनों में। See generally it is performed in the open ground, खुले मैदानों में गरबे परफॉर्म होते हैं। So generally it is performed in the open ground एंड सर्कलिंग टू द मांडवी, बीच में माता जी का मूर्ति या तो फोटो होता है, एक मंडप जैसा लगाया जाता है छोटा जिसको मांडवी कहा जाता है, और उसमें गोल घूम के गरबा सर पे रख के डांस परफॉर्म होता है। सो जनरली इट इज अ परफॉर्म इन द ओपन ग्राउंड एंड सर्कल्ड इन द मांडवी केप्ट इन द सेंटर ऑफ द ग्राउंड अलोंग विद द स्ट्रोक ऑफ द हैंड एंड बीट्स ऑफ ड्रम। ताली के ताल से सर पे गरबा लग के मांडवी के आजू बाजू गोल घूम के गरबा लिया जाता है। सो गुजराती पोएट्री नोन एज द गरबा। नाउ गुजराती पोएट्री, गरबा क्या है? गुजराती पोएट्री है। सो गुजराती पोएट्री नोन एज गरबा एंड गरबी। आपने दयाराम की गरबी गुजराती साहित्य में आप लोग पढ़ते हो, गरबा एंड गरबी। सो गुजराती पोएट्री नोन एज द गरबा एंड गरबी आर चीफली एसोसिएट विद द कृष्ण भक्ति। मोस्ट ऑफ भगवान कृष्ण के भक्ति के ऊपर, भगवान कृष्ण की रास लीला के आधार पर ही इसके गाने गरबा और गरबी होता है। तारा विना श्याम मने एकलू लागे, वाह वाया ने वादळ उमटिया, यू नो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग आर बेस्ड ऑन द कृष्ण भक्ति। सो गुजराती पोएट दयाराम रोड द पोयम। दयाराम यू हैव टू रिमेंबर, दयाराम आपको याद रखने हैं। सो दयाराम wrote a poems in a Gujarati which mostly ladies sing in the colorful and the emotional garbi of Lord Krishna's love। भगवान श्री कृष्ण की याद में, भगवान कृष्ण के लिए ये सब गाने और नृत्य किए जाते हैं, और दयाराम गरबा और गरबी के लिए आपको याद रखने हैं। See this two image here you can see, जैसे ये गरबा है, सर पे जो लिया है ये गरबा है। ओके, सो ट्रेडिशनली जो डांस परफॉर्म होता है वो मांडवी के आजू बाजू सर्कल में घूम के सर पे गरबा लेके तालियों के ताल से, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मोस्ट ऑफ, और माँ जगदम्बा की प्रेयर के लिए ये सब गायन और नृत्य होते हैं। सी दिस इज द मांडवी, बीच में मांडवी होती है और आजू बाजू डांस परफॉर्म किया जाता है। सो दिस इज द इमेज। नाउ रास, रास और गरबा के अंदर वैसे तो कृष्ण भक्ति होती है पर थोड़ा एनर्जेटिक डांस है रास। ओके, सो रास इज अ डांस टू बी परफॉर्म इन द सर्कल अलोंग विद द सिंगिंग। इट्स अ मेनली परफॉर्म इन द गुजरात। गरबा भी गुजरात में दुनिया में प्रस्तुत किया जाता है, बट रास मोर एनर्जेटिक। So there is a story that Lord Krishna shown Ras Leela to devotee the Bhakt Narsi Mehta। और आपको पता है कि कहानी है भक्त नरसिंह मेहता जो भावनगर के लिए प्राउड है, तड़ाजा में जो पैदा हुए फिर जूनागढ़ में गए। तो ऐसा माना जाता है भक्त कवि नरसिंह मेहता ने भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, रासलीला मतलब भगवान, ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जी राधा जी और गोपियों के साथ रात को नृत्य करते हैं, लास्य नृत्य है ये, तो रास खेलते हैं।
So there is a story that Lord Krishna has shown. भगवान की कृपा से, भगवान की दया से नरसिंह मेहता ने रास लीला देखी थी. So devotee the भक्त नरसिंह मेहता, भक्त नरसिंह मेहता ने भगवान की रास लीला देखी थी. So Ras is mostly performed in Gujarat during the Navratri and Janmashtami festival. Most of the Ras जन्माष्टमी के दौरान और नवरात्रि में भी उसको परफॉर्म किया जाता है. सो डांडिया रास इज वन ऑफ इट्स टाइप. डांडिया को लेके जो खेला जाता है दैट इज अ वन टाइप ऑफ रास ओनली. बट सम पीपल परफॉर्म रास बाय द प्लेसिंग अर्दन पॉट ऑन द हेड. पर काफी बार रास गरबा ऊपर लेके अर्दन पॉट, गरबे को सर पे रख के भी रास खेलते हैं. सो डांडिया रास इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रास एंड some people perform ras by placing earthen pot on the head. So due to the increased influence of the Vaishnav sect, ras has become more popular. क्योंकि ये कृष्ण भक्ति, वैष्णव सेक्ट क्या है, मतलब कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है. सो इट्स बिकम मोर पॉपुलर. भगवान कृष्ण में को जो मानते हैं, जो वैष्णव पंथी है, वो वैष्णव पंथी लोग भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, भगवान विष्णु की. एंड दे परफॉर्म लाइक यू नो, they will associate jointly and immense उसका एक वहां पे लोगों में देखा जाता है. So due to increased influence of Vaishnav sect, Ras has become more popular. And women wear traditional dresses, chaniya choli, traditional beautifully handmade chaniya choli. So women wear traditional dress like the embroidery chaniya choli, and men wear embroidery kadiya dhoti, kadiyu, kediyu and choini and the dhoti. Gents boys पहनते हैं. So when they perform or they play the ras, so this is the traditional costume. See, this is a ras. This is also a performance of ras, and you see the beauty of the dress. How beautifully kediyu choini and the chaniya choli you can see. And see students, this is the ras. Actually this is the ras. Boys perform करते हैं और बहुत energetic होता है. It's a absolute energetic form of the dance. So this is the also kediyu, and this is also traditional costume to present the ras. And nowadays kediyu, dhoti, choini, chaniya choli, traditional, this all also they wear to perform the garba. Now other dances of Gujarat. First we talk about garba, then we talk about the ras. Now let's talk about the other dances of Gujarat. So first is a गोफ गुथन डांस. गोफ गुथन डांस, इसको कहा जाता है गोफ गुथन नृत्य. ओके, सो गोफ गुथन नृत्य, इसके पॉइंट्स जो है इन फॉर योर एग्जाम पर्पस. अब ये एक स्पेसिफिक एरिया के हम बात कर रहे हैं, जैसे गरबा परफॉर्म इन एंटायर गुजरात. बट अब हम जो डांस फॉर्म्स की बात करेंगे, इट इज अ स्पेशलिटी ऑफ पर्टिकुलर एरिया एंड रीजन. ओके, so it is performed on drum beat, drum के साथ, and ताल and lay of music, rhythm, tying a rope with a mandap. मंडप के डोरी और द चुंदड़ी ऐसे लगाई जाती है मंदिर, और उसको लेके डांस किया जाता है. tying a rope with the mandap, pillar, tree and holding the other end in the hand. एक जो डोरी है, या तो साड़ी है या तो दुपट्टा है, एक उसका जो एंड होता है, मतलब एक छेड़ो, वो मंडप पे टाई होता है, और दूसरा बॉय या गर्ल के हाथ में होता है, और इसकी क्रॉस क्रेस वो डिजाइन पैटर्न बनाते हैं, गोल गुफन, गोफ गुथन. ठीक है. सो दे परफॉर्म डांस इन अ ग्रुप होल्डिंग द रोप इन वन हैंड एंड डांडिया इन अदर. एक हाथ में उनके डोरी होगी जो मंडप पे, एक एंड मंडप पे टाई किया हुआ है, दूसरे हाथ में वो डांडिया लेंगे, एंड दे विल प्रिपेयर, दे विल मेक द पैटर्न. सो दैट इज अ गोफ गुथण. गुथण એટલે ગૂંથવું. ओके, वीविंग करना. सो गोफ गुथण, डोरी को गूंथना. सो दे परफॉर्म अ डांस इन अ ग्रुप ऑफ होल्डिंग द रोप इन वन हैंड एंड डांडिया इन अदर. दे मेक द क्रीपर लाइक द फॉर्मेशन. गूथे, चोटला जैसा होता है, लड़कियां चोटली लेती है, ऐसे क्रीपर, वेल के जैसे, क्रीपर्स लाइक फॉर्मेशन गोइंग वन इनसाइड एंड अदर कमिंग आउटसाइड. उसमें परफॉर्म करने वाला एक नीचे से जाएगा, दूसरा उसको क्रॉस करके बाहर से निकलता है. सो दे ट्राई टू
प्रिपेयर द पैटर्न, लाइक इस तरह से एक अंदर एक बाहर, फिर ऐसे डिजाइन और करने की वो कोशिश करेंगे. दिस इज एन एग्जाम्पल. So they make a creeper like the formation going one inside other coming outside. This is repeatedly done forming a circle और ultimately they will form the circle और एक पूरी डिजाइन पैटर्न वो बना देंगे. So this is repeatedly done forming a circle. This way they make and open the गुथण plate. जैसे लड़कियां जो चोटलो, जिसको हम गुजराती में चोटलो ले एम कहे ने, वो प्लेट बनाते हैं, उसको इंग्लिश में प्लेट कहा जाता है. तो पहले वो प्लेट लेते हैं डांस के द्वारा और फिर वो प्लेट को निकाल देते हैं, मतलब गूथे, पहला उसको गूथन करते हैं और फिर उसको निकाल देते हैं. इट इज अ हार्ड स्किल. सो दिस इज स्टाइल ऑफ अ डांस इज कॉल्ड द गोफ गुथन डांस. सो इफ द शॉर्ट नोट इज आस्क्ड टू यू व्हाट इज अ गोफ गुथन, if you have to explain गोफ गुथन, then what it is? Dancer makes the creeper like a formation going one inside other coming outside. This is repeatedly done forming the circle, and this is where they make and open the guthan or the plate, and this form of the dance is known as the gof guthan. See, this is the gof guthan. एक मंडप होता है, बीच में एक पोल होता है, एक एंड ऊपर लटकाया हुआ है, एक उनके हाथ में है. एक अंदर बार जाके वो लोग पैटर्न क्रिएट करते हैं और वापस उसको रीओपन कर देते हैं. पहले उसको क्लोज करेंगे फिर उसको ओपन करेंगे. सी बोथ द पिक्चर इज इमेजेस ऑफ द गोफ गुथन. दिस इज द डांस फॉर्म और इसी तरह से डांस क्रिएट किया जाता है. दिस इज अ गोफ गुथन. एक ऊपर एंड ऊपर है, एक उनके हाथ में, विद द बिट ऑफ द ड्रम, लय और ताल से वो लोग नृत्य प्रस्तुत करते हैं. ये आदिवासी नृत्य है. नाउ धमाल डांस ऑफ सिदी कम्युनिटी. झिंगालाला हु अफ्रीकन, यू नो, ऐसा लगता है अफ्रीकन सिदी बादशाह हु आर ओरिजिनेट फ्रॉम द अफ्रीका, एंड उनको गुलाम के तौर पे भारत में लाया गया था. और गिर के एरिया में एक पूरा गांव है जहां पे सिदी लोग, हप्सी लोग रहते हैं. सो सिदी प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन जाम्बूर विलेज. याद रखना है, जाम्बूर विलेज इन द सेंटर ऑफ गिर. गिर के जाम्बूर विलेज में सिदी लोग, हप्सी लोग रहते हैं. ओरिजिनली बिलोंग टू द अफ्रीका. कहाँ के है? अफ्रीका. परफॉर्म दिस डांस. अफ्रीका, सिदी, जाम्बूर विलेज, धमाल नृत्य. धमाल जैसे गुजराती में कहते हैं ना, कोई बहुत तूफान करता है, शरारत करता है, तो हम कहते हैं वो धमाल कर रहा है. सो उसी टाइप का वो डांस फॉर्म है. So Siddhi is presently residing in Jambur village in the center of Gir, originally belong to the Africa, perform this dance. They perform dance by rhythmically striking mashira. Mashira matlab what? Coconut shell containing earthen lamp inside. जिसको हम श्रीफल कहते हैं, टोपरू. उसके अंदर, कोकोनट शेल के अंदर वो दिया रखते हैं, earthen lamp, और उसको लेके वो डांस परफॉर्म करते हैं. सो उसको क्या कहा जाता है? मशीरा. सो मशीरा मीन्स व्हाट? कोकोनट शेल कंटेनिंग अदर अर्थन लैंप इनसाइड कवर्ड विद द क्लॉथ, और उसके ऊपर कपड़ा ढक देते हैं. कोकोनट शेल होता है, उसके अंदर अर्धन लैंप होता है, और इट विल कवर विद द क्लॉथ. सो वेयरिंग द पिकॉक फीदर, पहनेंगे क्या? मोर के पंख डांस के वक्त. Wearing the peacock feather and holding the small drum in hand forming a circle. कॉस्ट्यूम क्या रहेगा? पिकॉक के फेदर होंगे, हाथ में मशीरा होगा, ड्रम होगा, और सर्कल में वो लोग डांस परफॉर्म करेंगे. और ऐसे नृत्य को क्या कहा जाता है? धमाल नृत्य. They dance with a high and low pitch intonation of ho ho sound which echoes in the whole forest. हो हो ज्यादा लंबा और अलग अलग पीच से हो हो ऐसे करके वो डांस प्रस्तुत करते हैं. सो दे डांस विद द हाई एंड लो पिच इनोटेशन ऑफ द हो एंड साउंड विच इकोज, और इसकी आवाज पूरे जंगलों में गूंजती है, इसलिए उसको धमाल नृत्य भी कहा जाता है. दे डांस इन द ग्रुप इन इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड. अलग अलग प्राणियों और पक्षियों के आवाज निकालते हो, इमिटेट करते हो उनकी साउंड की, एंड दैट इज हाउ दे परफॉर्म दिस डांस.
सी दिस इज द इमेज ऑफ धमाल नृत्य. सी एनिमल्स, जैसे यहाँ पे पिकॉक के उन्होंने पंख लगाए हैं, अब आवाज करते हैं ड्रम के साथ, ये नृत्य करते हैं. बोथ इमेजेस ऑफ द धमाल नृत्य. सी कैसे कॉस्ट्यूम है, एंड इट्स लाइक पूरा एक आदिवासी या तो हप्सी सिद्धियों के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाने वाला डांस है. दिस इज द इमेज ऑफ धमाल नृत्य, दैट व्हाट यू कैन सी. नाउ मेरायो डांस. मेरायो, इट्स अ मेरायो नृत्य. सिटी गिर के एरिया, झांबुर विलेज, धमाल नृत्य. नाउ we will talk about the Merayo dance. So this type of dance is seen near the stepwell of Banaskantha region. So याद रखना है मेरायो बनासकाठा, मेरायो नृत्य बनासकाठा रीजन आपको याद होना चाहिए. तोरण इज वोवन. तोरण मतलब हैंगिंग, सबको पता है, हमने इसके आगे के लेक्चर्स में भी देखे हैं तोरण. So toran is woven with the tall grass of red and झुंझड़ी. अब it is also one type of grass. क्या होता है तोरण? तोरण किसके बनाए जाते हैं? ग्रास के, और झुंझड़ी के तोरण बनाए जाते हैं. And this dance is performed on the drum beats and sword tricks. And this type of dance is called the Merayo dance. So what is the Merayo dance? Merayo dance will perform in the stepwell of Banaskantha region. तोरण is woven. तोरण बनाए जाते हैं, किसके तोरण? With the tall grass and reed and झुंझड़ी. And this is dance is performed on the drum beats and sword tricks. This type of dance is called the Merayo dance. See, this is the Merayo dance. Here you can see this is the both are the Merayo dance. इस तरह से वो बनाते हैं और इस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है. नाउ पठार डांस. पठार डांस. दिस डांस इज मेनली परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ पठार कम्युनिटी ऑफ सुरेंद्रनगर. पठार कम्युनिटी, बट याद क्या रखोगे? सुरेंद्रनगर. सुरेंद्रनगर पठार नृत्य. पठार कम्युनिटी उसको परफॉर्म करती है. सो दिस डांस मेनली परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ पठार कम्युनिटी ऑफ सुरेंद्रनगर. दिस डांस विद द ताल एंड लय ऑफ डांडिया एंड मंजीरा. डांडिया और मंजीरा लेके पठार नृत्य होता है. वाइल डांसिंग दे जनरेट द सीन लाइक द सी वेव्स. और समुद्र की लहरों का वो सीन क्रिएट करते हैं, लाइक द शिप मूविंग ऑन द सी वेव. जिस तरह से दरिया के अंदर शिप सेल करेगी, उस तरह का सीन क्रिएट करने की वो लोग कोशिश करते हैं. सो दिस डांस इज मेनली परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ पठार ऑफ सुरेंद्रनगर रीजन. दे डांस विद द ताल एंड लय ऑफ डांडिया एंड मंजीरा. एंड while dancing they generate the scene like the sea waves or like the ship moving on the sea. तो ये पठार नृत्य है, सुरेंद्रनगर का है, जो हमारा एक टाइप का फोक डांस है. नाउ कोली एंड मेर डांस. मेर कम्युनिटी है, कोली भी एक कम्युनिटी है. सो कोली ऑफ सौराष्ट्र परफॉर्म द कोली डांस. सौराष्ट्र में कोली कम्युनिटी है जो फिशिंग और फिशरी से एसोसिएट है. सो कोली ऑफ सौराष्ट्र परफॉर्म द कोली डांस. तो आपको उसका रीजन याद रखना है. कोली डांस सौराष्ट्र, जैसे भावनगर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सौराष्ट्र. ओके, सो कोली ऑफ सौराष्ट्र परफॉर्म द कोली डांस. While dancing they hold the madraso on the head. So while dancing they hold madraso on the head and they wear a headgear, turban. पागड़ी वागड़ी पहन के वो डांस परफॉर्म करते हैं. एंड डेकोरेटेड विद द एम्ब्रॉयडरी, और एम्ब्रॉयडरी वाली टर्बाइन वो पहनते हैं, टर्बाइन. एंड द मिरर टाइड विद द ग्रीन कलर एम्ब्रॉयडरी बेल्ट, और ग्रीन कलर का पट्टा पहनते हैं. They wear a bhet on their waist to perform a dance. भेट लगाते हैं अपना डांस. भेट मतलब एक वेस्ट का बेल्ट होता है. Similarly, मेर डांस of Saurashtra and other dances of Bharwad tribe are also well known. So Pathan Nrutya, Kori dance, Mer Nrutya, this all are the type of the folk dances of Gujarat. See, this is the मेर नृत्य. ये मेर रास है.
हाथ में तलवार और इस तरह से, इट्स अ हाईली एनर्जेटिक डांस. दिस बोथ इमेजेस ऑफ द मेर नृत्य, ये मेर रास है, मेर डांस का ये चित्र है. सो सी, सो हाउ एनर्जेटिक एंड हाउ ब्यूटीफुली दे आर परफॉर्मिंग. उनके हाथ में स्वॉर्ड और सब कुछ रहता है एंड जंप ले लेके वो नृत्य करते हैं. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेर डांस. So what point you have to keep in mind student about the गोफ गुथन डांस? पूरा वो प्लेट को गूथेंगे फिर उसको निकालते हैं. सो गोफ गुथन डांस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. धमाल डांस ऑफ सिदी, जाम्बुर विलेज, गिर के जंगलों के जाम्बुर विलेज में अफ्रीकन लोग जो इंडिया में आके बसे हैं सिदी, वो लोग प्रस्तुत करते हैं. देन मेरायो डांस, पढ़ार डांस एंड काली एंड द मेर डांस, दैट इज द कोड़ी नृत्य और द मेर रास. मेन नृत्य के बारे में हमने बात की. See student, ultimately what we can say, as we discussed in the previous chapter, here also we find that Indian culture is universal, assimilating all. इतने प्रकार के नृत्य तो सिर्फ गुजरात की बात है और ये भी सब कोई नृत्य नहीं है. It is not all included, these are the few. इससे ऊपर आप एक समझ लो कि अगर एक गुजरात में भी इतनी विविधता है तो पूरे भारत में नृत्य, कला, साहित्य के अंदर कितनी विविधताएं होगी. So as we discussed in the previous chapter, here also we find that Indian culture is a universal assimilating as a result of arrival of various tribes since ancient time to contemporary. One many changes occurred like the growth of development in handicraft, होम आर्टिस्ट्री, पेंटिंग, डांस. और जैसे जैसे सभ्यताएं एक दूसरे से मिलती है ड्यू टू द इंटरमिंगलिंग, संस्कृति के अंदर, ट्रेडिशन के अंदर, डांस फॉर्म्स के अंदर, हर एक चीजों में कुछ ना कुछ बदलाव आता है. एंड इट्स लाइक चेंजेस इज एक्सेप्टेबल ऑलवेज. सो हमेशा ये आर्ट क्राफ्ट जो सालों, हजारों सालों से हमारी परंपराएं चली आ रही है, उसमें कुछ ना कुछ नया हो रहा है, नया कुछ इनोवेटिव आ रहा है, कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है. पर इससे एक बात तो हम साबित और देयरफॉर 100% श्योरिटी से कह सकते कि जो भारत के अंदर कला, साहित्य, डांस के अंदर जो विशेष विभिन्नताएं हैं, ऐसी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी, दुनिया के कोई भी देश के अंदर इतनी विभिन्नताएं देखने को मिलती है. अल्टीमेटली मोरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन ऑफ द लेसन, स्टिल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. फिर भी भारत एक है, हम सभी भारतीय है. इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, रिलीजन व्हाट वी फॉलो, वी ऑल आर द सेम. इससे एक अंदाजा लगाओ कि भारत के अंदर, भारत की संस्कृति में कितनी विभिन्नताएं हैं. आज हम गुजरात मतलब गरबा, गरबा मतलब गुजरात सिर्फ इतना नहीं है, गुजरात में तो इतने सारे डांस फॉर्म हैं. Okay, so this is the beauty, this is the essence of this chapter. And as I said, मैंने शुरुआत में जब फर्स्ट लेक्चर शुरू किया था तो मैंने बोला था कि एंड ऑफ द लेक्चर, एंड ऑफ द चैप्टर, यू विल प्राउडली फील दैट यस, प्राउडली वी कैन से दैट वी आर इंडियन. सो जितना समझते जाओगे, जितना जानते जाओगे, तो अल्टीमेटली यू विल बी प्राउड दैट यू आर इंडियन. सो लेट्स राइट टुडेज होमवर्क. So homework of the day, describe the tribal dances of Gujarat. गुजरात के ट्राइबल डांसेस है जिसमें हमने गोफ गुथन पढ़ा, धमाल पढ़ा, मेरायो, पढ़ार डांस, कोड़ी डांस, मेर डरास, उसके बारे में. एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द गरबा एंड गरबी ऑफ गुजरात. गरबा और गरबी के बाद लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी है. सो स्टूडेंट, हियर आई एम एंडिंग अप दिस लेक्चर as well as this chapter, and I hope whatever content, whatever topic, what we have learned, what we have discussed, entire concept, the content is clear with you people, and ultimately आप proud feel करने चाहिए और कर रहे होगे that yes, we are Indian. So here I am ending up this lecture. Thank you, take care and goodbye.